First of all, I would like to thank DGHS for providing us the opportunity to present here and deliver the talk. The background has been given in the morning. I am here with my colleagues, Dr. Bilal Ahmed sitting over there and Dr. Osama. So, we will be covering these 6 topics as per the format provided to us. And the work has been made easy to us because we have been asked to cover mostly the Unani part, and you are all Unani experts in your field. So, we will be just giving the outline and a gist of how the things of Unani perspective has been incorporated in these guidelines. To begin with, I will be starting with cervical spondylosis. As was mentioned by Dr. A. Raghu sir in the morning, we have mentioned the ICD-11 codes along with it. So, it is a request that whenever you use this disease condition name, you please mention this code along with NUMC code also, because whenever the data will be generated for the usage of Unani medicine for treating this kind of condition, that will be generated and that will be of great assistance to us. So, coming to the Unani perspective of cervical spondylosis, in National Unani Morbidity Code, L18 has been given to Vajaul Unuk. So, here Vajaul Unuk has been mentioned in Unani medicine as a type of vagal mofascial arthritis and is named as Vajaul Unuk, neck pain, which happens due to spasm of muscles of the neck or diseases of adjoining structure. So, neck pain, as is obvious, the most common symptom of Vajaul Unuk. This is the etiology. It is basically due to accumulation of ghair tabai balgami khilq, that is morbid phlegmatic humor in the cervical intervertebral joint, and also weakness of cervical intervertebral joints, retention of immature health in the body, withdrawal of regular regimen for evacuation of body waste. So, this we have to apply our own wisdom and see what is the cause for which patient is reporting to us for this particular problem, whether it is cervical muscle spasm, history of trauma in that region, excessive intake of food items, having cold and wet moist temperament, use of thick killed humor producing dyes, and excessive alcohol intake. Just to give you a brief background, when we have prepared these guidelines, we have taken care of the evidence based publication or our classical literature to compile this information. So, these are the risk factors specific to Unani system. Cold air, it is one of the important risk factors. Abnormal posture, we all know that maintaining neck posture in a low physiologic position for prolonged period during sleeping and working. Most of us are sitting in abnormal posture right now, but that is the problem of sedentary lifestyle when we are working at our desk, sitting, even here also. So, I will be showing those pictures also to you. Then weak joints due to their sway mizaj, mustahkam, persistent morbid temperament is there. Elderly population, just my colleague has informed that the incident is more prevalent above this age. Sedentary lifestyles, people who do not do neck exercises are prone to develop Vajaul Unuk, and the people having balgami mizaj. बलगमी मिजाज इसमें सबसे ज़्यादा प्रोन होता है. वजल मफासिल इन टोटालिटी ज़्यादातर बलगमी मिजाज पेशेंट्स में होती है. सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइटिस में तो ये रहता ही है. देन दिस इज़ द पैथोलॉजी. Sway mizaj sada and mazaj, you all know about it, but we have elaborated in on the guidelines when only simple morbid temperament or caffeite is involved and when health is involved. We have to diagnose that way. What is the main cause, with which is it early stage or is it chronic stage where this sway mizaj madi has settled in. Accordingly, we will be advising the treatment as per our usul-e-ilaj. Then one of the most important cause is also the gaseous matter that accumulates over there.
or coldness due to any other factor that causes the collection of Balgami Mada. Again, it's all phlegmatic and Balgami on the slide because that is the main cause. And cold exposure also causes stiffness in the neck muscles. So during the clinical examination, the affected cervical vertebral joints may be colder than other parts of body, and pain may be continuous with moderate severity, and it might be deeply seated, and mobility may be decreased. The pain may get relieved after usage of hot regimens, and urine may be translucent and thick in consistency. तो आप नजरी मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको, and you will have to maintain a format for this also along with other formats which are my earlier colleague just mentioned. So these are the key usul-e-ilaj points: taskin-e-alam, tankiya, tahleel-e-talayyun and taqwiyat-e-mafasil. So there's analgesia, evacuation आप करेंगे तनकिया की मदद से. आप अगर वहाँ इन्फ्लामेशन है तो आप तहलील व तलय्यन देकर उस इन्फ्लामेशन को रिजॉल्व करेंगे और फिर इलाज भी ये उसको स्ट्रेंथन करेंगे जॉइंट्स को, उस एरिया को. सो वी विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर, एंड इसमें रेजिमल थेरेपी में भी देयर देन सर्टेन मोडालिटीज़ विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. तो इसमें कई सारी हमने मेंशन की हैं. एज़ पर योर ओन विजडम यू विल बी डिसाइडिंग कि आप पर्टिकुलर पेशेंट में अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कौन सी मोडालिटी आप अडॉप्ट करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट में, जो थोड़ा हम आगे और एलॉबरेट कर देंगे. प्रिवेंशन मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच में रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़. यहाँ पे आपका जो असबाब सित्ता ज़रूरिया है डैट विल कम इनटू पिक्चर. यू हैव टू टेक केयर ऑफ डैट आस्पेक्ट, एंड पेशेंट की काउंसलिंग करनी है असबाब सित्ता ज़रूरिया को लेके. Avoid excessive mental, emotional and physical stress. Stress causes headache and worsens neck pain and stiffness. Keep the spine straight while sitting or standing. Very difficult, but we have to do it ourselves also and advise the patient also. Then avoid forward bending exercise and jogging, running, jerking vigorously and high pillows. Intake of balanced diet and to be physically active. Avoid carrying heavy bags and lifting heavy weights. Avoid trauma to the neck. To the patient and to us, this might look quite simple, but we are an instruction based society. We have to repeat that again and again to the patients ताकि वो उसको फॉलो करें. We all know पेशेंट्स को हमें जब भी आएगा उसको ये बताना है, तभी वो फॉलो करते हैं. बिकॉज अगेन हम भूल जाते हैं ये नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं. तो पेशेंट जब भी आ रहे हैं तो आपको प्रिवेंशन मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है. देन particularly maintaining proper spinal alignment during sitting and standing activities that I have mentioned. Then non-pharmacological strategies like lifestyle adjustment, weight control, yoga, exercise, patient education, psychosocial support, assistive devices, thermal treatments and modification in daily activities. फिर reassurance and counseling plays a very important role. क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ कि जो हम कहते हैं साइकोसोशल जो अंडरस्टैंडिंग होती है पेशेंट को, अगर हम अपने असबाब सित्ता ज़रूरिया से शुरू करें तो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट आस्पेक्ट ऑल्सो कि व्हाट इज़ द मेन कॉज जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहा पेन, हमको उसको एड्रेस करना है. दैन स्पेसिफ़िकली क्योंकि ये बलगमी मिजाज है तो बलगमी मिजाज में जो बलगम बनाने वाली ग़िज़ाएँ हैं वो आप उनको मना करेंगे. आपको एक्सरसाइजेज़ बतानी हैं. एक्यूट केसेस में आप एक्सरसाइज नहीं बताएंगे. जब सेटल डाउन हो जाएगी वो कंडीशन, देन यू विल बी टेलिंग व्हाट एक्सरसाइजेज टू डू. एंड देन पिलो को अवॉइड करना है ड्यूरिंग स्लीप एंड प्रॉपर पोस्चर ऑफ नेक. पिक्टोरियल डिपिक्शन भी मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ. Then correction of moral and temperamental derangement. Then basis of correction is food and lifestyle modification, phlegmatic humor का evacuation. So level 1 अभी जो डॉक्टर रघु सर ने मॉर्निंग में बताया था, it's a solo physician clinic, health clinic, PSC. That aspect. The diagnosis of cervical spondylosis relies primarily on clinical evaluation following a thorough medical history. Basically आपको इसमें उसके साइन सिम्टम से और जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि उसको cervical spondylosis है.
लेकिन अगर ज़रूरत रहती है तो आप एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जो कि इवनिंग में हमारा मॉडर्न एक्सपर्ट टॉक दे रहे हैं, दे ही विल बी डिटेलिंग ऑन दैट, बट दैट यू हैव टू सी। इस लेवल पे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। दिस इज़ द रिकमेंड डाइट एंड लाइफस्टाइल। देन चाहे आप घर पे या वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल रहना है, इसमें बेसिकली बार बार जो दोनों टॉपिक्स मेरे रहेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस की, पोस्चर की बात ही ज़्यादा होगी क्योंकि दैट इज़ द मेन कॉज, और वो आपको यहाँ पे जगह जगह मिलेगा भी। वेयर आई हाईलाइटेड दैट इवन इन द STGs, ये उसी से हमने मटेरियल लिया है। तो टू मिनिमाइज स्पाइनल कर्वेचर, स्लीप ऑन योर साइड, ऑलवेज यूज़ अ फर्म एंड फ्लैट सरफेस फॉर स्लीपिंग। Again repeating that we all know all these indications, all these suggestions, but we are an instruction based society, तो हम अपने patients को बार बार will remind them and motivate them to follow these recommendations of diet and lifestyle that is of great help. Gentle exercises, योगा करना, stretching करना, main aspect हमारा ये है कि हमें bone and muscles को strengthen करना है, and we have to make use of riyazat, we have to make use of yoga, we have to make use of dietary modifications and recommendations also. Then इसमें a diet with adequate daily amounts of calcium, phosphorus and vitamin D supports for a healthy bone growth. We all know that we have to analyze उसका diet balance है या नहीं है. So this I was mentioning, posture is important. It has been mentioned very clearly in the STGs that you can make in any form of pamphlet or posters, and you can stick in your center and let the patient know what is right and what is wrong way. Then these are the exercises. A stepwise description is given over there, so it is very easy to do and follow. This is there in the STGs. For example, neck rotation, stepwise it has been mentioned, so it is easy to do. How to sit on a chair, how to do, because you have to be very careful while advising this. Again, when there is acute pain, at that time no exercise should be done, but after that when the patient has settled, then you can advise all these neck rotation, lateral side flexion, flexion and extension. So these you can go through. This is there in STG. Stepwise guidance have been given in the document. So deep neck flexion, chin retraction, scapula setting. So special effort has gone to make it very easy to do, user friendly. So if you'll see, it is the steps has been given in bullet points that can be easily explained to the patient how to do and how to go ahead in this. Same here, scalene stretch, pectoral stretch. The main purpose is all the muscles surrounding the cervical vertebrae area should be strengthened, even the bone area over there. Head lifts, pectoral stretch, chin tucks, shoulder lifts. I will not be elaborating on that, but you can see this is listed in your STGs which has been provided to you. Then yoga practices, you can effectively manage cervical spondylosis patients through various practices. These are the name of some asanas, Tadasana or Urdhva. If you do not know what is this particular asana, so to make it easy for this, you can go here. This is available on Ministry of Ayush Yoga portal that they have created. On that they have specially mentioned this. So you can share this with the patient, or you can stick it in your center also. That is very, you can use it for educating the patients. This can be used, and this is the link also provided. Then restricted diaphragm, again refrain from lifting weights with improper posture. If driving, take regular breaks and avoid long hours behind the wheel. Use minimal pillows under your neck and shoulder while sleeping. Usually sleep के टाइम पे ज़्यादा रहता है, और हाई राइज पिलो इज़ द मेन कॉज. ये हमने अपनी जनरल प्रैक्टिस में भी देखा है. ऊंचा तकिया जो मेन कॉज होता है पेशेंट का, तो आपको ये देखना है उस पर्टिकुलर पेशेंट का क्या है, हमें ये बताना है. उस टाइम वी विल एनालाइज दैट. Then soft chair, bed should be avoided. Avoid leaning while standing or sitting. When standing, maintain balanced weight distribution on your feet. Reduce curvature in the back, makes it better equipped to support weight. Stay clear of excessive stress and anxiety as it amplifies pain intensity.
तो कुछ रिलैक्सिंग मॉड्यूल्स हमें बताने हैं पेशेंट को. स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग डिमिनिशेस ब्लड फ्लो टू द स्पाइन एंड लीड्स टू द डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल डिस्क. तो हिस्ट्री लेंगे, अगर स्मोकर है तो वी हैव टू काउंसिल दैट पेशेंट के उस स्मोकिंग उसको छोड़ना है. Similarly, avoid fried foods, spicy, oily foods, excessive meats and refined foods like sweets, confectionery, bread, etc. So these are do's and don'ts. अग़ज़िया लतीफ़ा जो है इसमें फ़ायदेमंद रहती हैं. एंड देन सम मुसख्खिन अद्विया, क्योंकि ये बलगमी मिजाज का रहता है, दैट शुड बी एडवाइज टू पेशेंट टू टेक विच इंक्रीज हीट इन द बॉडी ड्यू टू हैव हॉट टेम्परामेंट और हीट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे मसाले सब आ जाते हैं. और कुछ और दूसरी दवाई देनी हो तो वो भी दे सकते हैं. डोंट्स में अगेन अग़ज़िया बारिदा को हम मना करेंगे लेने को. अल्कोहल कंजप्शन अगर उसका हिस्ट्री में है दैट विल यू शुड एडवाइड. दैन इनटेक ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, वो ज़्यादा नहीं लेना है. सेक्शुअल इंटेलिजेंस स्पेशली आफ्टर हैविंग फूड. सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सोर डाइट्स, कोल्ड वाटर इनटेक. ठंडी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लेनी ही नहीं है उस पेशेंट को. Then this has been listed, and the effort which has gone in listing these drugs, whether single or compound, is that they should be easily available. They should also be listed in essential drug list. तो इसको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपना डाटा जनरेट कर सकें जो पेशेंट को दे रहे हैं. दे हेयर वी हैव टू एडवाइज़ अगेन क्या अपना पेशेंट को कि उसको कैसे लेना है वो आपको रिकॉर्ड करना है. फिर आप क्या एडवाइस कर रहे हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर फॉर्मेट. इसमें से आपको चूज़ करना है, कम्बिनेशन बनाना है कि आपको क्या देना है एज़ पर योर ओन विजडम. आप पेशेंट को क्या देंगे, देन यू हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, बिकॉज आफ्टर दैट एक एविडेंस आप जनरेट कर रहे हो कि आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को किस कम्बिनेशन से ट्रीट किया है. अगेन देन दिस इज़ द लिस्ट ऑफ some compound formulation, habbe suranjan, majun chop, chini majun suranjan. Then there are certain roghinias which can be used for application. So again जो मैं बोल रही थी कि physician may prescribe one drug or combination of 2 or more drugs. Physician may also recommend इलाज with तदबीर. ये हम level 1 की बात कर रहे हैं. As per the condition of the patient, underlying cause and stage of disease, the duration of treatment may vary from patient to patient. And physicians should decide the dosage and duration of the therapy based on the clinical findings and response to the therapy. Follow up every 15 days में आप करिए, 15 दिन के बाद कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि पहले करना चाहिए तो आप पहले भी कर सकते हैं. रिव्यू जो आप करेंगे उसमें यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द इंडिविजुअल सिम्टम्स एंड हाउ द कंडीशन अफेक्ट्स देयर डेली लाइफ एंड वेलबींग. क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे, जैसे भी डॉक्टर साहब ने पूरा फॉर्मेट दिखाया था. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट और उसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. कंटिन्यूसली मॉनिटर द कंडीशंस, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन, एडमिनिस्टर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मैनेजमेंट थ्रू एक्सरसाइजेज एंड योगा. योगा का मैंने आपको लिंक भी शेयर किया है कि अगर उस नेम से आपको पता नहीं लग रहा है पर्टिकुलर तो यू कैन सी देयर दिस. और वैसे भी ये भी बताया था कि कुछ सेंटर्स में योगा प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल हैं, योगा ट्रेनर्स. Engage in discussions with the individual about the understanding of the condition, any worries or question, personal choices. Regularly assess how well all treatment works and how well the individual can tolerate them. Provide guidance and support for self-management. This is the referral criteria. जब आपको कोई positive response नहीं मिल रहा है, आपको evidence मिल रहा है कि condition जो है और worsen हो रही है in severity and it's developing complications also. And when the condition significantly affects their quality of life and ability to perform daily activities. When there is uncertainty in making a diagnosis, this has been elaborated in earlier talk, नाम का presentation में. When the condition remains uncontrolled despite efforts. So now we come to level 2. Level 2 में आपके CHC small hospital 10-20 bedded hospitals हैं with basic facilities वहाँ पे available हो सकती हैं, जैसे routine investigations, X-rays etc. Clinical diagnosis same है जैसे कि level 1 में बताया है. And case refer from level 1 usually they'll report to level 2 or a freshman must be evaluated thoroughly for complications. The diagnosis would be primary clinical but may involve some investigations. Management same as level 1. उसमें additionally we have come some more single and compound formulations over here which can be used.
For example, Sana, Tukhme Khatmi, Zarchob, you can just go through, all these are available in the guidelines, and again you have to choose the combination as per your wisdom and discretion what has to be administered to the patient, but then you have to maintain proper record also कि आपने क्या दिया था, कितने दिन के लिया था और कब उसको पेशेंट को आराम आया. Same here. Again this compound formulation, Majun Jograj Google, माजून घी कवार, सफ़ूफ़ सूरंजान, कुश्ता गौदंती, हलवाई घी कवार. डोजेज फॉर्म के साथ साथ डोज पर डे, टाइम, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, किस चीज़ के साथ देना है, दैट ऑल हैज़ बिन लिस्टेड. देन दिस आर द नेम ऑफ सर्टेन ऑयल्स विच कैन बी यूज फॉर लोकल एप्लीकेशन, जैसे रोगन दारचीनी है, रोगन मालकंगनी है, रोगन हिना, रोगन शिब्बित एंड रोगन मस्तगी. ये बुल्टिस आप यूज़ कर सकते हैं ज़मात के लिए. दिस फॉर्मुलेशन हैज़ बिन गिवन विद क्वांटिटीज़, और इसमें रेफरेंसेस मिलती है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो STG में सारी रेफरेंसिंग हुई है. वी हैव गिवन रेफरेंसेस टू ऑल दिस. सो दिस कैन बी अप्लाइड. टेप पुल्टिस आप बनाकर उस जो अफेक्टेड एरिया है उसमें आप लगा सकते हैं. इसी तरह से ये तिला का आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको प्रिपेयर करके. वैसे सिंपल है. सूरंजान, फ्रेश कोरिएंडर लीव लेकर आप अफेक्टेड एरिया पे दिस कैन बी यूज्ड. फिर मुंजिल मुसल थेरेपी का लेवल 2 में आप क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन रिक्वायर्ड रहेगा. तो ये लेवल 2 पे हमने बताया, लेवल 1 पे नहीं बताया है. तो दिस इज़ द फॉर्मुलेशन. मुंजिज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन. इसका जो शानदार बना के डिकॉक्शन आप देंगे. फिर उसके बाद जब नुस्खे आपको सिग्नल सुनाई देगा यूरिन में, हाँ, देन यू कैन गो फॉर मुसिल ऑल्सो. तो ये तो एडमिशन में ही और आपके अंदर ज़ेरे निगरानी रहेगा, तो इसमें पेशेंट को एडमिशन रिक्वायर्ड रहेगा. देन आप ये रेजिमेंट थेरेपी लेवल 2 पर कर सकते हैं, ड्राई कपिंग का विदाउट स्कारिफिकेशन, टू डाइवर्ट द एक्यूमुलेट वॉर्बिड हिबर्स फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन. नतूल आप कर सकते हैं, डिकॉक्शन ऑफ करनब, नतूल ज़ीरा, नतूल विद सल्फर वाटर, दिस कैन बी डन. देन इनके बाद आप दे सकते हैं जो अफेक्टेड स्पाइन है उस पर आप वेपर्स डाल सकते हैं तुकमे शब्बित के. सो दिस वी हैव गिवन. मैनेजमेंट का भी आप फिर उस हिसाब से जैसे STG में लिखा है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए आप नीड बेस्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और एडवाइस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसको. Then physiotherapy management, अगर वहाँ पे facility available, that can be suggested to patient. That has been listed over here, depending on the facility available. सर्वाइकल कॉलर का अक्सर बोलते हैं कि इसमें इसकी न्यूमरस ऑथर्स ने अफर्म किया है कि there's a wide usage और it reduces the pain, so that can be recommended. डाइट एंड लाइफस्टाइल जैसे अभी बताया था लेवल 1 में मोस्टली सेम है. फॉलोअप इसमें भी आप 15 दिन से, या अगर आपको लगता है पहले पेशेंट को बुलाकर उसका फॉलोअप करना है, डैट यू हैव टू डू एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स. रेफरल क्राइटेरिया सेम जो लेवल 1 में आपको बताया था. उसके एडिशन में when the initial medical treatment does not produce improvement during an acute exacerbation at advanced stages of disease like lateral or central disc herniation, at that time you have to refer. Coming to then level 3, जहाँ पे आपको आयुष हॉस्पिटल्स अटैच टू टीचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि अभी बताया गया था अर्लियर प्रेजेंटेशन में, आपको रेफ़र कर देने हैं पेशेंट्स को. इसमें जब लेवल 3 में आएंगे तो दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज़ लाइक डाइटिशियंस काउंसलिंग एंड हैविंग फिजियोथेरेपी यूनिट ऑल्सो. Clinical diagnosis same as level 1 and 2. So confirm diagnosis and severity with the help of investigation like magnetic resonance imaging and other. Then management same as level 1 2. इसके एडिशन में हमने यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट्स लिस्ट कर दी हैं. अगेन सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग्स जो कि अर्लियर लेवल पे नहीं थी, यहाँ उस पर हमने ऐड किया है. डैट यू कैन सी सिंगल भी हैं, कंपाउंड भी हैं. तुरबुत का इस्तेमाल सिब्र का, सफ़ूफ़ सूरंजान, हब्बे मुंतिन अकबर, हब्बे मफासल, दिस कैन बी यूज्ड. ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी दिस हैज़ टू बी एडवाइज्ड एज पर योर डिस्क्रिप्शन. Then again this compound formulation habbe chumchuni, majune ushpa, majune azraki. Oil, these oils can be used for local application. So this is the combination of zimad-e muhallil, zimad-e wajh mafasil and marham.
which can be applied on the affected joint. The ingredients and how much that has to be taken has been listed over here. इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस, आप किस पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे. दैन अगेन हेयर मुंजिन मसल थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे IPD फैसिलिटी रहेगी, वो आप क्योंकि इसका मेन पर्पस ही है इवैक्यूएशन ऑफ एक्सेसिव बलगमी मादा. तो फॉर दैट यू कैन admit the patient, give the munzij and then mushil as per the norms after seeing the nose in the urine. Then इलाज पे तदबीर, here you can give hijama bil ashur, wet cupping with scarification bil आप उसमें आप दे सकते हैं. Viscid humus accumulated in the joints may be evacuated from the body. एंड इसका पूरा आपका जो सेटअप बना है मोस्टली NABH एक्रेडिटेशन के बाद यू आर फॉलोइंग द SOPs ऑफ इलाज बिल तदबीर. एंड आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू ऑल दैट CCRUM हैज़ launched SOPs for cupping. They are available on our website. I'll request you all to please download that and follow that for adopting standard procedures. That is available on our website. That was an exercise which was taken by our respected Director General Sir after the joining. After brainstorming session, we were lacking in having complete clear-cut SOPs. This is first in line. Inshallah, we'll be having more SOPs on all the regimental therapies. So please make use of that. This is freely available, and in this aspect also you can adopt those SOPs while applying cupping, whether dry or wet. So inkabab, again exposure to the affected spine, vapors of decoction of tukme soya. This has been listed in this decoction of crushed hermal, 1 part with sirka, 6 parts is also used for vapor bath. Recommended diet and lifestyle same as has been mentioned in level 1 and 2. Restricted lifestyle is also same, follow up again. Referral criteria same as mentioned earlier in level 2, plus other modalities can be considered depending on the case to case basis and to rehabilitate the patient properly. That is our discretion. So thank you. This was the gist of cervical spondylosis. This is my email ID. If in case of any query, you people can contact me. Thanks. So now we'll take the queries if they are either at the end of session or right now. It is totally up to you. Otherwise, I'll call my colleague now, Dr. Bilal, to cover osteoarthritis and rheumatoid arthritis. I am working as a research officer scientist 4 for Central Council for Research in Unani Medicine. हम आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शाम तक की उनमें रिपीटेशन इसलिए होगा कि हमारी किताबों में ज़्यादातर वजुल मफासिल के झैल में ही ये तमाम तफासिल आई हैं, तो उसकी रोशनी में दवाएं और तदाबीर के उम्मन तकरार होती रहेगी. लेकिन इस पूरे प्रेजेंटेशन का मकसद कहीं ये नहीं है कि किसी आप लोगों को पढ़ाना या समझाना है, बल्कि एक तरह से हम आगे किस तरह से इस पैगाम को पहुंचाएंगे, असल मकसद ये है. तो इस डॉक्यूमेंट में एज ए रिसर्चर या एज ए फिजिशियन बहुत सारी कमियां इस लिहाज से आपको नज़र आएंगी कि ये चीज़ भी इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमें चीज़ें मिनिमम पे रखनी होती हैं और सहलुल हुसूल और आसान दवाएं शामिल करनी होती हैं. इसलिए हमने इस TG को इस तरह से ध्यान में रख के बनाया. आप ये जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आज के ज़माने में जिस नाम से जानी जाती है, हमारे यहाँ अतिब्बा उसको वजुल मफासिल बलगमी समझते हैं. और नेशनल यूनानी आर्बिट्री कोड जिसके ज़रिए हम नमस्ते पोर्टल और अहमिस पर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो, नेशनल यूनानी आर्बिट्री कोड जो है वो मिनिस्ट्री ने 2017 में डेवलप किए थे और अब ज़्यादातर सरकारी इदारे ख़ास तौर से जो है इन्हीं के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं और डेटा जनरेट करते हैं. ICD के हवाले से अगर बात करें कि जहाँ पे डुअल कोडिंग हम करते हैं, तो हम M15, M19 ICD-10 कोड है इसका, और ICD-11 में जो है FA002 FA05 यानी 5 या 6 ऐसी ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं जो कि ICD इनको कवर करता है और हमारा वजुल मफासिल बलगमी उसको कवर करेगा. आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है और ज़्यादातर जो है ये हिप, नी और फिंगर्स ऑल ओवर स्पाइन में होती है. 80% जो है इन इंडिया, नियरली 80% ऑफ द पॉपुलेशन शोज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस.
और उनमें ज़्यादातर नी पेन वाले ज़्यादा होते हैं, और 80% ऑफ दोज विद ऑस्टियोआर्थराइटिस हैव लिमिटेशन इन मूवमेंट एंड 25% कैन नॉट परफॉर्म देयर मेजरली लिबर्टी। तो हम अपने जो ओपीडीज़ में बैठते हैं तो हमें अक्सर इसका सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, और हमारे जो नमस्ते पोर्टल से और उससे रिपोर्ट निकल के आई कि अवजुल मफासिल जो है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूनानी मेडिसिन ट्रीट करती है। वजुल मफासिल बलगमी जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमरल डिजीज़ है, और इसका सबब जो है वो फ्लैगमेटिक ह्यूमर, एबनॉर्मल फ्लैगमेटिक ह्यूमर का जॉइंट्स में जब एक्युमुलेशन होता है तो उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके नतीजे में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जॉइंट जो है वीक हो, ताकि वहाँ पर मादे का इंसबाब होगा, और जब मादे का इंसबाब होगा और फिर आपकी हरारत गरीज़ी एज के साथ कम होती है तो वो तहलील मादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाद के दौर में उसमें तहज्जुर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सख्ती मफासिल में पैदा हो जाती है। इसी तरह से अगर इमेच्योर खिल्त अगर आपके यहाँ पैदा हो रही है आपकी सुए तदबीर से और आपके एज के लिहाज से, अगर इमेच्योर खिल्त पैदा होना शुरू हो जाती है तो उसका इज्तिमा भी आपके जोड़ों में ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि 40 के बाद ये मर्ज ज़्यादा होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी, आप कोई चीज़ बॉडी वेस्ट दूर करने के लिए इसहाल वगैरह लेते रहे होंगे, उसको छोड़ देंगे तो भी ये होने लगेगा, या कोई आपकी जॉइंट इंजरी होगी, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और वज़न उसका पड़ रहा है उसकी वजह से होगी। आपका डाइजेशन और साथ ही साथ वहाँ जो साइट है उसका भी डाइजेशन, क़ुव्वत हाज़मा अगर मुतासिर होगी तो ऐसी सूरत में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तदाखुल ताम करेंगे कि यानी दवा के खाना खाने की जो तदाबीर बताई गई हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या आप कोल्ड और मॉइस्ट दवा ग़िज़ाएँ ज़्यादा ले रहे हैं जो हमारे यहाँ टेम्परामेंट के लिहाज से है, या आपने बहुत ज़्यादा खाम खिल्त, थिक खिल्त पैदा करने वाली डाइट्स ली हुई हैं, या जिसे अग़ज़िया गलीज़ा हमारे यहाँ कहते हैं, तो भी आपको वजुल मफासिल हो सकता है। यानी आप इन तमाम चीज़ों में जो देखेंगे कि आपके लाइफ स्टाइल से और आपके रहने से और जीने से, खाने से इस मर्ज़ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा बहैसियत एक तबीब के हमें ज़रूरी है कि हम अपने पेशेंट को एजुकेट करें, ख़ासतौर से जो 40 से पहले के हमारे पास आते हैं, ताकि वो इसमें न पड़ जाएं। ये एक सादा सी बात है जो हम सब जानते हैं कि सूए मिजाज दो तरह का होता है। सूए मिजाज सादा होता है जिसमें मादा शामिल नहीं होता है, और सूए मिजाज मादी होता है जिसमें मादा शामिल होता है। सूए मिजाज सादा को बड़ी आसानी से वो हम छोटी छोटी तदबीरों से सही कर सकते हैं, लेकिन सूए मिजाज मादी में हमें बहुत सारी तदाबीर करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको लास्ट में मुंजिल मुसिल थेरेपी और इस्तिफ़राग करना पड़ता है। इत्तेफाक ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सूए मिजाज बलगमी है तो मादा इसमें शामिल है, इसलिए इसमें आपको वो तदाबीर अख्तियार करनी होंगी जो कि मादे को जिस्म से निकाल सकें। ये मेरे ख्याल से आगे जा रहा है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं, किन लोगों को हो सकता है अगर ट्रॉमा या इंजरी हुई है और इसकी वजह से मुस्तकिल वहाँ पर सूए मिजाज मुस्तहकम उसे कहते हैं कि वो मुस्तहकम इस तरह हो जाता है कि उसको फिर वापस लाना मुश्किल होता है। तो अगर सूए मिजाज मुस्तहकम किसी इंजरी के नतीजे में हो गया है तो वहाँ पर वजुल मफासिल बलगमी होना के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई परसिस्टेंट ये जो मुस्तहकम होता है उसकी वजह से वहाँ पर एक्युमुलेशन होने लगता है और वो खिल्त वहाँ से दूर नहीं हो पाती, लिहाजा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने रोक दी, यानी वो तमाम वसाइल जो कि खिल्त को तहलील करते हैं या खिल्त को बदन से दूर करते हैं, अगर आप उनको छोड़ते जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके बदन में फुजलात जमा होंगे, और फुजलात जमा होंगे तो जॉइंट्स पे भी उनका असरात मरतब होंगे। हमारे किताबों के लिहाज से सूजन वहाँ पे होगी, टेम्परेचर वहाँ का निस्बतन दूसरे बॉडी पार्ट के लिहाज से निस्बतन ठंडा होगा, और कलर जो है वो सिमिलर होगा तकरीबन, क्योंकि बलगमी है इसलिए उसमें रंग की आमेजिश नहीं होती है। हैवीनेस होगी क्योंकि बलगम है तो इसलिए हैवीनेस होगी वहाँ पर, और दर्द जो है वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा क्योंकि सफ़रा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके अलावा डीप सीटेड पेन होगा, जॉइंट की मोबिलिटी रुक जाएगी क्योंकि तहज्जुर धीरे धीरे होने लगता है उसमें, तो जॉइंट की मोबिलिटी जो है कम होने लगती है। और अगर आप कोई हर गर्म चीज़ उस पर इस्तेमाल करेंगे तो बलगम की वजह से, उसके बलगम में होने की वजह से उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा जो यूरिन होगा वो ये बताएगा कि बलगमी मादे की ज़्यादती है, लिहाजा आपके उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी बल्कि ट्रांसलूसेंसी मिलेगी। और नब्ज़ जो होगी वो हमेशा चूँकि बुरुदत का गलबा है इसलिए बती होगी और उसमें इख्तलाफ पाया जाएगा, इस्तिवा नहीं होगा उसके अंदर। ये वो इन्वेस्टिगेशंस है जो आप अगर कराएंगे
लेवल 1 पर शायद ना मुमकिन हो, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 पे कराएंगे। वो एक्सरे है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जॉइंट एस्पिरेशन है, साइनल फ्लूइड। इसमें एक्सरे को ज़्यादा अहमियत दी गई है और एक्सरे ही पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो हम बलगमी और सफरावी और दमवी में करते हैं। इसके अंदर बलगम का मिजाज चूँकि वो होता है कि उसके अंदर बुरुदर का गलबा होता है, इसलिए वो तमाम चीज़ें ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, डल पेन होगा, स्वेलिंग इसमें ज़्यादा होती है, टच पे जो है वो छूने पे सॉफ्ट और कोल्ड होगा, वाइटिश कलर होगा स्किन का वहाँ पर, और कोल्ड अगर ठंडक बढ़ जाए तो वो एग्रेवेट कर जाएगा और रिलीव होगा वो हीट से। इसी तरह से सफरावी में इसके बरक्स होता है और दमवी में भी इसके बरक्स होता है। तस्कीन अलम, पहला काम जब हम करेंगे दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे। हम ये जानते हैं कि मादे से हुआ है इसलिए तनकिया करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें तहलील और तलीन, मादा वहाँ पर जो है उसको तहलील करेंगे और उसको नरम करेंगे ताकि वो दूर हो सके वहाँ से, क्योंकि मादे में सख्ती होती है। बलगम की खसूसियत ये है। तक़वियत मफासिल करना ज़रूरी है ताकि बाद में फिर इंसबाब फिर ना होने लगे। अगर आपने मजबूत नहीं किया मफासिल को तो चूँकि उसकी आदत है तो वो फ़ौरन वहाँ पर मादा फिर से वापस आएगा। तो उस मादे को ना आने के लिए कि इंसबाब फिर से ना हो, मादा वहाँ पर फिर ना आ जाए, हमें मफासिल को तक़वियत करना ज़रूरी है, तक़वियत देना ज़रूरी है। बाकी लाइफ स्टाइल चेंजेस आप करेंगे उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें सोशल और हो सकता है उसको समझाने की ज़रूरत हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरवेंशन करना होगा। ये वो ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं, इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर। इलाज बिल ग़िज़ा भी एक चीज़ है जिसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम बताते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि ज़मात हम लगाते हैं। तमरीख़ का मतलब ये है कि कोई चीज़ थिक कंसिस्टेंसी की उसको हम उस पर लगाते हैं तो उसको तमरीख़ कहते हैं हम। तदहीन यानी ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। नतूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से तहलील और तलीन मादा में नतूल की बड़ी अहमियत है। तकमीद हार वो भी जो है, क्योंकि हार बलगम है इसका, तो हार चीज़ें जो है उसमें फ़ायदा देती हैं। रियाज़त का बहुत बड़ा रोल है जो आगे भी सामने आएगा। हम्माम तहलील मादा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क़ुव्वत बदनी को बरंगेख्ता करती है, हरारत को इनाश हरारत करती है। हिजामा जो है वो इमाला के लिए और एवैक्यूएशन के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हिजामा बिल शर्त जो है वो एवैक्यूएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से लोकल एवैक्यूएशन के लिए, और हिजामा बिला शर्त जो है वो हम इमाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। इरसाल अलग यानी तालीक़ लीज थेरेपी का भी बहुत अहम रोल है इसमें, ख़ासतौर से जो लोग कश्मीर में मैं चूँकि रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर लोग करते हैं। फ़स्द चूँकि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, लेकिन फ़स्द का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन बलगमी में कम है। ज़्यादा रोल जो है उसका वो दमवी में होता है। क़य का ख़ास तौर से रोल है कि ये ऊपर से तमाम मादों को निकालने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से जितने भी मॉर्बिड मैटर होते हैं बॉडी के अपर पार्ट से, क़य उसमें बड़ा अहम रोल अदा करती है। आबजन का भी तहलील मादा में बहुत अहम रोल है, दल के लय्यिन का भी है, और मुज़िज मुसिल थेरेपी का तो है ही, क्योंकि वो मिजाज के बाद मादे को जिस्म से खारिज करती है। प्रिवेंटिव उसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ इसमें ली जाती हैं, और ये नॉन फार्माकोलॉजिकल होती हैं, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, योगा, एक्सरसाइज, पेशेंट एजुकेशन, साइको सोशल मेजर्स, सपोर्ट डिवाइसेस, थर्मल मॉडलिटीज़, ये सब दी जाती हैं। और आखिर में हम करेक्शन ऑफ ह्यूमरल एंड टेम्परल डिरेजमेंट अपने यूनानी के लिहाज से करते हैं। बाकी ऊपर की चीज़ें तमाम लोगों के लिए कॉमन हो सकती हैं और उस पर किसी की वो नहीं है। ये कुछ एक्सरसाइजें हैं जो कि तक़वियत मफासिल का काम करती हैं और जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाती हैं, जिसमें आपके STG में ये मौजूद होंगी, आप देख लीजिएगा, उसकी तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं। नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, इनर रेंज, कॉर्डिसेप्स हैं। ये वो तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इस्तेहज़ार के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप किस तरह से उसको दूसरे लोगों को बताएंगे, वो इसके लिए इस ट्रेनिंग का मकसद बहरहाल ये है। कॉर्डिसेप्स स्टैंडिंग है, मिनी स्क्वाट और सिट टू स्टैंड है। हील रेजेस ये भी एक एक्सरसाइज है। स्टेप अप है, काम है, क्लैम है, और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं देख पा रहा हूँ कि आज कल राइज हैं, ये तक़वियत मफासिल के ज़ैल में हमारे यहाँ मज़कूर हैं, अलग अंदाज में मज़कूर हैं। योगा की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, योगा आसनाज हैं, क्रियाज हैं, कुंजाल, कपाल भाती है, और ये अभी मैंने बताया कि उसको जो है आप वहाँ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हर डिज़ीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पे तैयार कर रखा है, और वैसे भी हो सकता है कि योगा ट्रेनर आपके सेंटर पे या हो मौजूद, तो वो भी इसको अंजाम देंगे। ये यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। जो करनी चाहिए वो इसमें चने को पानी को भिगो के पीने के लिए बड़ा अतिब्बा ने बहुत ज़्यादा लिखा है, किताबों में बार बार तज़किरा किया है। अग़ज़िया लतीफ़ा देते हैं, जिसमें कि ख़ास तौर से अग़ज़िया लतीफ़ा उसे कहते हैं कि वो ग़िज़ाएँ जिससे ऐसा ह्यूमर पैदा होता है जो थिक कंसिस्टेंसी का नहीं होता है, क्योंकि थिक कंसिस्टेंसी जैसे ही होगी वैसे ही मर्ज़ बढ़ जाएगा हमारा।
अग़ज़िया मुसख्खना वो हैं जो कि हरारत पैदा करती हैं, क्योंकि हरारत इसमें ज़रूरी है, बरूदत का मर्ज़ है, तो लिहाजा इसको तहलील मादा के लिए और मादे को दफ़ा करने के लिए अग़ज़िया मुसख्खना का बहुत अहम रोल है। इवन ये अग़ज़िया मुसख्खना के लिहाज से कि अगर किस जगह पर वो मरीज़ है उसका भी बहुत फ़र्क। अगर कोई आदमी कश्मीर की ठंडक में है तो उसको ज़्यादा मुसख्खिन ग़िज़ाएँ देनी होंगी, अगर कोई आदमी ऐसे गर्म इलाके में रहेगा तो उसको निस्बतन कम दर्जे की ग़िज़ाएँ देनी पड़ेंगी। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करेंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड, सेक्सुअल इंटेलिजेंस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खट्टी ग़िज़ाएँ नहीं देते हमारे यहाँ, कोल्ड वाटर का इंटेक मना करते हैं, जूसी फ्रूट्स नहीं देते हैं। एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि इसकी वजह से रूह जो है बाहर और अंदर जाती है, तो उसकी वजह से तबीयत को बड़ी ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, लिहाजा मर्ज़ बढ़ने के इम्कानात होते हैं। और पर स्ट्रांग परगेसिव शुरू में नहीं देंगे, क्योंकि पहले हमें मुंजिद देना है, फिर मुस्हिल देना है। ये लेवल 1 पे जहाँ पर एक अकेला फिजिशियन होता है वहाँ के लिए है। ये वो दवाएं इसमें हमने ख़ास तौर से इल्तिज़ाम किया है डालने का, जो कि बआसानी घरों में मतलब मिल जाती हैं, और उनको अगर कम दर्जे का मर्ज़ है तो उनको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इसमें ओपीडी लेवल मैनेजमेंट में ख़ास तौर से मैं तज़किरा करूँगा कि नतूल और ज़माद, इस तरह की चीज़ें जो हम बना सकते हैं अपने यहाँ, उसको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए बजाय दवाओं के खिलाने के। खिलाने पर कम ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। हिजामा भी आप कर सकते हैं अगर आपने कोर्स कर रखा है। ये वो कुछ माजून हैं और कुछ हब हैं। हब इसलिए शामिल किए गए हैं कि डायबिटिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिहाज से, और ये मुकामी दवाओं का हमारा बड़ा ही अच्छा रोल है। हमारे यहाँ जो हमारे अपना काउंसिल का तजर्बा ये है कि मकामी दवाओं का भी बड़ा अच्छा रोल है इसमें। तो ये पहले लेवल पे करते हैं, फॉलो अप हर 15 दिन पे करेंगे। इलाज भी तदबीर जो है वो आप उस लिहाज से, अपने लिहाज से कि ज़रूरत के लिहाज से आपके यहाँ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन करेगा। लेकिन नतूल वगैरह ये है कि अगर आप पेशेंट को भी ट्रेन कर दें तो वो खुद ब खुद कर लेता है और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। मस्कुलोस्केलेटल में हमारा जो सबसे ज़्यादा रोल आता है वो लोकल और इस तरह की दवाओं का, नतूल का आता है, बहुत ज़्यादा आता है। रेफरल क्राइटेरिया अगर ये है कि अगर आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट का रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप आगे भेज दें, या कोई ऐसी चीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे भेज दें उसको। दूसरे लेवल पे भी डायग्नोसिस जो है वो लेवल 1 ही की तरह होती है, और कुछ अगर आप करा सकते हैं कुछ टेस्ट तो वो टेस्ट करा लें, ये टेस्ट की वो तफसील दी हुई है। इसमें भी दवाएं हमने वैसी रखी हैं जो कि आसानी से दस्तयाब हो जाएं और जिसको आप आसानी से इस्तेमाल करा सकें। इसमें बहुत ज़्यादा दवाएं शामिल करने ना करने की वजह यह है कि हर जगह की फ़ैसिलिटीज़ अलग होती हैं और वहाँ पर करना कितना मुमकिन होता है, लिहाजा वो दवाएँ शामिल की गई। लेवल 2 की ये दवाएँ हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये माजूनात हैं हमारे, और ये रोगन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेवल 2 पे मुंजिद मुस्हिल थेरेपी है, जिसको हम तकरीबन देंगे यहाँ पे 10 से 15 दिन। इसमें गुले बनफशा, चिरायता है, और आपका मको खुश्क है, शाहतरा है, बादियान है, बेखे बादियान है, सुरंजान है, मवीज़ मुनक्का है। इसका जोशादा जो है 10 से 15 दिन देंगे, और उसके बाद 2 से 3 दिन तक मुस्हिल देंगे, जिसमें गुले सुर्ख और सना और मग़ज़ फलूस और तुरंजबीन और मग़ज़ बादाम शामिल होगा। इस थेरेपी को देने के लिए ज़रूरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसीलिए से हमने लेवल 2 पे देते हैं। रेजिमिनल थेरेपी में आप जो चाहें, नतूल, ज़माद या जो भी चीज़ चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिहाज से। और रेफरल क्राइटेरिया भी यही है कि अगर वो बार बार चीज़ें डिफ़ॉर्मिटीज़ डेवलप हो रही हैं तो आप रेफ़र कर दें उसको। लेवल 3 आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होता है, इसके अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो डायग्नोसिस भी उन्हीं बुनियादों पे कर लेंगे, मैनेजमेंट भी उन्हीं बुनियादों में कर लेंगे, और रेजिमिनल थेरेपीज़ भी अपनी सवाबदीद पर, जैसा आप बेहतर समझते हैं, वो कर लेंगे इसको। इसमें थोड़ा सख्त दवाएं हैं, तुरबुद है, सिब्र है, जो कि हम अवलिन उस पर नहीं रखते हैं, इसको बाद में देते हैं। और दवाएं जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकती हैं ये वाली, लेकिन ये है कि इनकी ज़रूरत बिल्कुल लास्ट में पड़ती है। ये हब है, माजून है, रोगन है। और फिर इसी तरह से लेवल 3 पे जो मुंजिज देते हैं उसके अंदर थोड़ा सा दवाएं जो है वो ऐसी देते हैं कि जो निस्बतन ज़्यादा सख्त हों, जिनका मिजाज ज़्यादा हो। ये है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पे था। आपके कोई सवालात हो तो मैं इसको करूँ, वरना फिर मैं अगले पे चलूँगा। तहज्जुर मफासिल में भी जब आपको करना पड़ेगा कि पहले मादे को तहलील करना पड़ेगा। नॉट, ये एक स्टेज है। अतिब्बा ने बताया है कि अगर किसी भी एक्यूट स्टेज की डिजीज़ को, एक्यूट जो जोड़ों को दर्द है, अगर उसको मिसमैनेज किया जाए
तो वो भी तहज्जुर में जा सकता है, या शुरू से ही अगर किसी जोड़ के दर्द का मादा बलगमी और गलीज़ रहा होगा तो उसमें भी तहज्जुर हो सकता है, और तीसरे कोई आतिशकी मादा या इन्फेक्शस डिजीज़ अगर होगी तो उसके मादे की वजह से 3 वजह से तहज्जुर हो सकता है। लेकिन तहज्जुर हमेशा जो है लास्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज नहीं होती है। तो आपको रिमेटाइड में भी तहज्जुर मिलेगा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मिलेगा, और आपको कोई इन्फेक्टिव वगैरह हुआ है तो उसमें भी मिलेगा। अतिबा ने बहुत साफ तरीके से बयान किया इसको। जी मॉडिफाई करने पड़ते हैं कुछ केसेस के अंदर, यहाँ पे शूट करते हैं, पूरा शूट करते हैं या मसाज करते हैं। जी 80% केसेस के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन 20-30% पेशेंट रिजल्ट नहीं मिलते। जी तो कुछ रेजिडेंस का जैसे आपने जिक्र किया कि टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपर बॉडी तो ये मेरा जी सवाल ये है जी कि ये टैग का जो यूज ऑफ टैग है या अदर रेजिडेंस है या जो हम बॉल के ताल्लुक से आपने बात की कि जब यूजर्स के पैरामीटर्स जाहिर हो जाए जी उसके बाद करें, तो ये चीज़ें अभी भी क्या कोई जब हम एसटीडीज बना रहे हैं तो प्रैक्टिकल लेवल पे किसी ने कुछ काम किया है इस पे कि टैग के ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि टैग किसी कोई एविडेंस बेस्ड कोई स्टडी इस तरह की है असल लेवल पे किसी ने किया है असल में देखिए, के ताल्लुक से कोई ऐसी एविडेंस बेस्ड अभी आज से 5 साल पहले हम ये बात किया करते थे कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे इतने डॉक्टर हैं, हम क्या करते हैं ये हम नहीं कर पा रहे थे। मिनिस्ट्री ने जो अपने इक़दाम किए हैं उसकी रोशनी में आज हम ये कह पा रहे हैं कि यूनानी मेडिसिन बेहतरीन तरीके से वजूल मफासिल का इलाज करती है, क्योंकि डेटा जनरेट हो रहा है। आपके लेवल पे अभी जो उन्होंने क्वेश्चनायर्स बताए आपको कि ये भरने हैं, ये एक डेटा जनरेट करेंगे। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं जो मिसिंग है हमारे लेवल पे, वो इसी आपके हमारे थ्रू, इसी स्टेजेस के थ्रू ही आने वाली है हमें निकल के, कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जब काम होगा और उससे चीज़ें निकल के आएंगी तब उनकी मनफियत होगी। हमारी पुरानी किताबों में, तकरीबन हज़ारों साल किताबों में ये तमाम चीज़ें मज़कूर हैं, और वो प्रैक्टिकल है। ये अफसोस की बात ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस किताब को, जिसको किताब आप थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, आज के साइंटिफिक पैरामीटर के लिहाज से वो थ्योरेटिकल है, लेकिन वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। किताबुल हावी फित्ती राजी की आप उठा लें, तकरीबन हज़ारों उसके अंदर केस स्टडीज़ मौजूद हैं, जो कि वो एक डेटा है। वो आपके इस वक्त तो सेंट्रल काउंसिल जो बेंगलोर का है वो तो करा रहा है, मुझे थेरेपीज वहाँ पे होती है, स्ट्रोक के पेशेंट्स और में होते हैं। हैदराबाद में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है। जी जी, क्या अभी भी हम जो बुक पे केस स्टडीज लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग बुक में फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल अगर बॉल के ताल्लुक से लिखा हो तो उसको प्रैक्टिकली आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ये जो बॉल है जीत की है? जाहिर सी बात है, जब एक सेंटर, रिसर्च सेंटर है, वो एक अपना मॉड्यूल डेवलप करता है, वो उसी के हिसाब से। मेरा सवाल भी तो यही है कि क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसी कोई प्रैक्टिकल स्टडी है या एविडेंस बेस्ड स्टडी किसी ने की है जिससे हम ये रेफरेंस ले सकें? बुक्स से तो हम पढ़ते हैं स्टडीज। तो मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ ऐसा हुआ है नहीं? वो तो ऑलरेडी रहता है डॉक्टर साहब। अगर आप इसमें जाए, आप जो कभी विजिट करें बेंगलोर, उनका अपने रिसर्च है उस पे से, स्ट्रोक पे है। जैसे CCRM में 23 पेरिफेरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो आप कह रहे हैं पैरामीटर्स, चाहे वो मिजाज का हो या बॉल के मुआयने का हो, क्लास का, मार्क्स का, वो जब हम प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं कोई रिसर्च स्टडी करने के लिए, वो उसमें फैक्टर रहता है। और जो हमारी IC जो इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, क्योंकि जो रिसर्च से रिलेटेड रहते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। उसमें जो हमारे यूनानी के एक्सपर्ट्स हैं उनका मेन फोकस इसी चीज़ पर रहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूट से भी आते हैं कमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अगर होते हैं, मोस्टली सर्वे बेस्ड होते हैं, तो हम उसमें इंक्लूड करवाते हैं। स्पेशली कम से कम आप पॉपुलेशन का टेम्परामेंट असेस कर लीजिए, क्योंकि जब उस सर्वे करेंगे तो उस पॉपुलेशन का सर्वे भी हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हमने अभी जैसे बताया कि SOPs कपिंग के तो हमने बना दिए जिससे डाटा जनरेट होगा। सिमिलरली 1 by 1 एक सीरीज़ हम निकालेंगे, SOPs सारे जितने भी रेजिमेंट थेरेपी, चाहे डायग्नोसिस क्राइटेरिया का है जैसा भी है, दैट विल बी इन प्लेस। टेम्परामेंट के लिए हमने एक एप्लीकेशन तो बना ही दी है, नो योर टेम्परामेंट, इफ यू हैव सीन दैट। उसी का हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर भी लेकर आएंगे। वैसे नहीं है, वी आर डूइंग आवर बिट, और ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये मैंडेट है और जो ये एक्टिविटी हो रही है वो एविडेंस बेस्ड यूजेज के लिए ही हो रही है। जो प्रोग्राम है, जैसे कि हाईलाइट किया था सुबह डॉक्टर रघु सर ने भी, और अभी हमारे कुलीग ने भी नाम का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के असिस्टेंट वाइजर सर आए हैं। तो
ये इस चीज़ का है, दैट इज वी आर डूइंग इट, वी आर जनरेटिंग एविडेंस। दूसरा टॉपिक ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को वजहुल मुफासिल मरकब इस लिहाज से कहते हैं कि इसके अंदर कई ह्यूमर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और उनके असरात अलग अलग अंदाज में नज़र आते हैं, इसलिए उसको वजहुल मुफासिल मरकब कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। इसका एनएमसी कोड L4.5 है, जो कि वजहुल मुफासिल L4 का एक टाइप है। आईसीडी कोड इसका जो है 10 कोड जो है 06.9 M है और आईसीडी 11 कोड जो है F820.0 है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जिसमें दर्द, स्वेलिंग, स्टिफनेस ऑफ स्पाइनल जॉइंट्स और जो कि मॉर्निंग में ज़्यादा तकलीफ देह होता है और अगर बहुत देर तक बैठे रहें या कोई काम ना करें तो ज़्यादा होता है। इसका प्रेवलेंस रेट जो है 0.75% है और ये तकरीबन 0.3 to 1% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को मुतासिर करती है। इसके अंदर जो है एक्युमुलेशन ऑफ बलगम एंड सफ़रा मिक्सचर होगा या सौदा और सफ़रा होगा। तो अलामात उस लिहाज से मिलेंगी, दोनों की मिक्स मिलेंगी। जब जब सफ़रा का गलबा हो जाएगा तो तकलीफ़ अचानक बढ़ जाएगी और जब जब सौदा सफ़रा का गलबा कम होगा तो सोजिश और तकलीफ़ में कमी होती है। इसी तरह से सौदा और सफ़रा, चूँकि सौदा और सफ़रा बलगम होते हैं इसलिए लास्ट में इसमें तहज्जुर बलगम और सौदा की वजह से होता है, सफ़रा की वजह से। सफ़रा जहाँ कहीं भी होगा वो फ़ौरन तरकीक कर देगा, लेकिन सफ़रा जब कम होता जाएगा तो तरकीक कम होती जाएगी, मादे का डाइल्यूशन कम होता जाएगा और उसके अंदर थिकनेस बढ़ती जाती है, लिहाजा बाद के दौर में उसके अंदर। लेकिन सफ़रा जो करता है इसमें वो उसके अंदर कोरोसिव सलाहियत पाई जाती है, खाने की सलाहियत पाई जाती है। अगर सफ़रा कहीं ज़्यादा होगा तो अकाल सिफत उसके अंदर पाई जाती है, लिहाजा वहाँ पर डैमेज जो है कार्टिलेजेस का जो होता है वो सफ़रा की वजह से होता है। बार बार अगर आपको अटैक होते रहते हैं तो वो ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर इसमें यूनानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएँ शुरू ही में तो मुझे लगता है, आप तो खैर बहरहाल मुआलजात के आदमी हैं तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा इसका, कि इसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें ख़ास तौर से मुरत्तिब और मुबर्रिद तदाबीर अख्तियार करने से जो है, जिसकी वजह से रा फ्लेग्म पैदा होता है वो, और ख़ास तौर से वो लोग जो सफरावी मिजाज के हैं अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मर्ज़ उनके अंदर पैदा होने की सलाहियत ज़्यादा होती है। या अगर इम्तलाई कैफियत है बदन में और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तब भी ये मर्ज़ हो जाता है। और जॉइंट्स की मूवमेंट्स, जॉइंट्स का अगर वीक हैं किसी वजह से तो वहाँ पर इंसिबाब मादा होता है और फिर उसके नतीजे में ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अगर कोई आप एवैक्यूएशन के मेजर्स लेते रहे हों, जैसे कैक और इसहाल का इस्तेमाल करते रहें और आप अचानक उसको छोड़ दें तो मादा जो रुकेगा वो जमा हो जाता है। इसी तरह से डायरेटरी इरेगुलरिटीज़ भी, यानी ग़िज़ाए गलीज़ लेंगे, यानी वो ग़िज़ा जिससे ह्यूमर्स जो हैं वो आपके थिक ह्यूमर्स पैदा होते हैं तो उससे भी ये मर्ज़ हो जाता है। डिफेक्टिव डाइजेशन एट द लोकल साइट एंड डिफेक्टिव डाइजेशन ओवरऑल, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल से भी ये मर्ज़ होता है। वजहुल मुफासिल मुरक्कब में चूँकि जो जोड़ होते हैं उनके अंदर जो मादा होता है वो बलगम ज़्यादा होता है, लिहाजा बारिद याबिस माहौल बना रहता है वहाँ पर, और उसकी वजह से अगर आपका सही लाइफ स्टाइल नहीं है तो वहाँ पर मवाद जो है ज़्यादा इकट्ठा होता है, लिहाजा उसके नतीजे में ये सौदा और सफ़रा और बलगम वहाँ पर पैदा होते हैं और उसकी वजह से उसको वहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार आप हो जाते हैं। सफरावी मिजाज के लोगों में ज़्यादा होता है, इसलिए उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, या जो लोग मुरत्तिब और मुबर्रिद तदाबीर अख्तियार करते हैं उन्हें भी इसका जो है इसके मुखालिफ जो है तरकीबें अख्तियार करनी चाहिए। या कोई आदमी अगर सफरावी मिजाज का है और अगर वो ऐसे फूड आइटम्स ले रहे हैं जिससे कि बलगम ख़ाम पैदा हो रहा है तो उससे भी उनको भी बचना चाहिए। स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में भी तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, और जेनेटिक भी ये मर्ज़ होता है। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, जेंटल मसाज से रिलीफ मिलेगा। अगर ऑयल लगाएंगे हॉट टेम्परामेंट के तब भी आराम होता है, रेस्ट से भी आराम होता है, और मूवमेंट से दर्द बढ़ जाता है। जो अगर सफ़रा और बलगम की आमेज़ी से मर्ज़ हुआ होगा तो अफेक्टेड जॉइंट येलोइश वाइट होगा, और अगर सौदा और सफ़रा की आमेज़ी से हुआ होगा तो थोड़ा ब्लैकिश येलो होता है वहाँ की स्किन जो होती है। ये वो टेस्ट हैं जो कि आप अपनी सहूलियत के लिहाज से और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके लिहाज से करा सकते हैं।
ये मैंने कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस दी है, जो कि जिसकी बुनियाद ये है कि वजुल मफासिल बलगमी, सफरावी, दमवी और सौदावी है, और ये मुरक्कब है, इस किताब में तफसील से दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। इसमें भी तस्कीन आलम पहला होगा, जब मरीज़ आएगा तो दर्द आप पहले दूर करते हैं, इसलिए तस्कीन आलम को सबसे ऊपर हम रखते हैं। मवाद का तनकिया ज़रूरी है ताकि तबीयत गलबा पा सके, और तबीयत गलबा पाए तो वो ख़ुद अपनी हीलिंग कर सके। तहलील औराम भी ज़रूरी है, और तक़वियत मफासिल। तक़वियत मफासिल का वही फ़लसफ़ा है कि तक़वियत मफासिल अगर नहीं होगी तो मादे का इंसबाब फिर से होगा, और फिर से मर्ज़ औद कर आएगा, लौट आएगा। इसके अंदर भी वही तमाम तदाबीर हैं, क़ै है, दलके लय्यिन है, तदहीन है, नतूल है, तकमीद हार है, रियाज़त है, हिजामा है, तालीक़ अलक है, तमरीक़ है, आबज़न है, मुंज़िज मुसल थेरेपी और हम्माम। इसमें पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्या है, कैसे प्रोग्रेस करती है डिज़ीज़, कैसे इससे बचा जा सकता है, रेस्ट की हिदायत दी जा सकती है, एक्सरसाइजेज़ जो कि इसको इम्प्रूव कर सकें उन्हें बताया जा सकता है। फ़िज़ियोथेरेपी के लिए कुछ वो हैं, उनको इस्तेमाल कराया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है कि ऑक्यूपेशन के लिहाज से उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली ला दी जाए कि उसके अंदर मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाए। न्यूट्रिशन और डाइटरी थेरेपी भी उसके लिए ज़रूरी है, वेट लॉस उसका होना चाहिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए ESR CRP आप लेवल 1 पे अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आप करा सकते हैं, और उसको एक्सरसाइजेज़ को बता सकते हैं, डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि इसमें दी हुई किताब में, फिर भी ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि आप उनको हिदायत दे दें तो काफ़ी हद तक उनके मर्ज़ में कमी आ जाएगी। इस STG का मकसद ही यही है कि मिनिमम से मैक्सिमम जो है वो हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो प्रैक्टिकल और ख़ास तौर से यूनानी के लिहाज से अगर देखें तो तदबीर का जो वो है वो बड़ा ही वसी है इसका मैदान, और उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इसको दर्द को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि घर पे आराम से की जा सकती हैं, मरीज़ को बता दिया जाए तो ये आराम से वो कर सकता है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। इसी तरह से योगा हैं, कुछ क्रियाज़ हैं और कुछ आसनाज हैं, प्राणायाम है, योगा निद्रा प्रैक्टिस, मेडिटेशन, इनको भी शामिल कर दिया जाए तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। डूज़ में उसको आराम करना चाहिए, कोल्ड वेदर में उसको बहुत ही स्पेशल केयर करनी चाहिए, रेनी सीज़न में चूँकि रतूबत का मादा बढ़ जाता है फ़ज़ा में, लिहाजा उसको एहतियात करनी चाहिए। हमेशा आसानी से हज़म हो जाने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि तबीयत को कम से कम उस पर हज़म ताम पे मेहनत करनी पड़े, और ख़फ़ीफ़ गोश्त जिसको हम ख़फ़ीफ़ गोश्त कहते हैं, या अग़ज़िया ख़फ़ीफ़ा या अग़ज़िया लतीफ़ा, बर्ड मीट, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अग़ज़िया गलीज़ा यानी दूसरे तरह के गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन से बचना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, ग़िज़ाए गलीज़ से बचना चाहिए। जो रेजिमेंट कोल्डनेस और मॉइस्टनेस बदन में बढ़ा दें उनसे बचना चाहिए, और वो उन डाइट से बचना चाहिए जो कि ख़ाम बलगम पैदा करें। ये कुछ दवाएं हैं, माजून हुशबा, हब्बे सुरंजान, रोगन बाबूना सादा, रोगन गुल, कलौजी, हल्दी, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इलाज बिल तदबीर के लिहाज से वो तदाबीर जो कि आपके लिहाज से सूटेबल हों, जो हो सकें, नतूल, ज़मात, तिला, तमरीक़, तदहीन, इनमें से कोई भी जो आप मुंतखब कर सकें। अगर हम्माम की फैसिलिटी हो तो वो भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए अगर कहीं पर है, जो कि उम्मन नहीं होती है। फ़स्त का रवाज चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं अभी वो करूँगा, लेकिन हिजामा का इस्तेमाल आजकल बहुत आम है और बहुत आसानी से कर रहे हैं। और अभी मैडम ने बताया कि वो उसके SOPs भी गवर्नमेंट की एक बॉडी CCRM ने जारी कर दी हैं, उनसे भी इस्तेफ़ादा किया जाता है। उसकी सॉफ्ट कापीज़ अवेलेबल हैं, वो जो है हासिल की जा सकती हैं। हर 15 डेज़ पे उसका फॉलोअप करेंगे, अगर देखेंगे कि मरीज़ की हालत कैसी है, क्या उसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो उसको फिर आप रिफ़र कर देंगे अगले को। लेवल 2 पे भी आपकी डायग्नोसिस लेवल 1 ही की तरह होगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर आप करा सकते हैं, RA फैक्टर, ACPA, C रिएक्टिव प्रोटीन, ये करा सकते हैं तो करा लें। लाइफस्टाइल और डाइट के जो हिदायत हैं वो वही रहेंगी जैसे कि लेवल 1 में थी। लेवल 1 में कुछ दवाओं का हम वो इजाफ़ा करते हैं, और वो दवाएं जिनका कि कवियत तासीर होती हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। हब्बे असगंद, माजून सुरंजान, रोगन सुर्ख, रोगन सुरंजान, रोगन चहारबर्ग और तुख्म ख़त्मी, जंजबील। ये मुंजिज का नुस्खा है एक, जो कि 15 to 21 डेज़ देना है, क्योंकि इसमें बलगम और कभी कभी सौदा का वो है, तो इसलिए 15 to 21 डेज़ देते हैं। और इसमें
दोनों का, सफ़रा का और सौदा या बलगम का लिहाज रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये देखिए नीचे यहाँ पोस्त हल्ला जर्द वगैरह है जो कि सफ़रा के लिहाज से शामिल किया गया है इसमें। लेवल 3 पर भी वही ये है। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी के लिए उसको भेज देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करेंगे, हेयर एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम में बता चुका हूँ। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ती है अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल शुरू हो जाते हैं। इलाज भी तदबीर का भी वही है लेवल 2 पर भी, कि जो भी आप मुनासिब समझें, जो भी सहूलियात दस्तयाब हैं उसके लिहाज से आप कर लें। फॉलोअप हर 15 डेज़ पे करेंगे। अगर बार बार जो है मर्ज़ का हमला हो रहा है और आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप आगे उसको रिफ़र कर दें, या साइनोवाइटिस हो गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि आपके काबू से बाहर हो रही है तो आप आगे को रिफ़र कर दें उसको। लेवल 3 वही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है जो इसमें कि सहूलियात की ज़्यादती होती है तो उस लिहाज से चीज़ों को मैनेज करते हैं। हब्ब मुकिल तीसरे लेवल पे माजून चोप चीनी, माजून जोगराज गुगल, माजून फ़लासफ़ा, कुर्स मफासिल, रोगन बाबूना कवी, रोगन बेद इंजीर, रोगन हफ्त बर्ग। वहाँ 4 बर्ग दिया था, यहाँ हफ्त बर्ग दे रहे हैं। रोगन औराक, रोगन हिना और चोप चीनी सिंगल दवाओं में सुरंजान और सना। इसी तरह से एक मुंजिज मुसिल का थेरेपी का सेंटर है जहाँ पर कि उसको एडमिट करने की सहूलियात हों, वहाँ पर ये मुंजिज मुसिल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मुंजिज मुसिल थेरेपी से ज़्यादा किसी चीज़ का इफ़ेक्ट इसमें आता नहीं, ख़ास तौर से क्रॉनिक डिजीज़ में। ये वो टोटल चीज़ हैं जो मैं बता सका। बाकी आपका कोई सवाल फिर हो वो शायद मैं उनको मुतमईन नहीं कर सका, और लेकिन ये है कि बहरहाल जी जी हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप बोलें। More in ladies than male patients. Not what we are doing in our hospital, Government Examination Hospital, Hyderabad. We are giving Mulzis for 21 days continuously. And after Mushkil, we are going through with first weekly once 100 ml withdrawal of blood for at least 4 weeks or 6 weeks, depends upon BHB percentage. You will be surprised to know that the patient will be all right within 1.5 months, 1 month of what you call elimination of the blood, and 1 month of what you call 21 days for Mudija, Musil and Tabrid. तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मतलब कि ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पैटर्नेज होना ज़रूरी है। इफ आई एम डूइंग, मैं खुद अपनी तरफ से कर ले रहा हूँ और मैं मेरे डाटा मेरे पास ये है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रॉपरली द गवर्नमेंट, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट के ऊपर जिस तरह से प्रोटोकॉल हिजामा के ऊपर हुआ बने हैं, SOPs बने हुए हैं, और उसके ताल्लुक से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव नेवर बीन कॉल्ड फॉर व्हाट यू कॉल प्रेजेंटिंग माय केसेस नेशनली और इंटरनेशनली एनीवेयर। मैं अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से फर्स्ट के ऊपर भी काम अगर हो जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है। अभी जस्ट वी आर डिस्कसिंग, आपके साथ भी बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट के केसेस के ऊपर, तो जितना भी आई मीन रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, और ये जितने भी इन्फ्लेमेटरी पेन्स हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स डिसीजेस हैं, इसके अंदर फर्स्ट का जो रोल है बहुत ही ग्रेट है। तो इसीलिए मैं एक रिकमेंड करूँगा तमाम डॉक्टर्स जो हैं मौजूद हैं हिंदुस्तान भर से, तो इसके ऊपर थोड़ा सा केयर करें और इसके ऊपर अपना थोड़ा सा व्यू लाया करें बिफोर वी गो टू इंडिविजुअल स्टेट एंड सिटीज इंशाल्लाह। थैंक यू। हमने तो इवन मुसिल देने से पहले ही वो फर्स्ट का यूज़ किया है। इमीडिएटली 1% की सिटिंग से उनको 20 to 30% पेन और स्वेलिंग में आराम मिल जाता है, और उसके बाद हमने मुसिल का जो है पूरा कोर्स करके तबरीक करके देते हैं। और मुंसिज का तो ये है, जब हमने मुसिल हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था तो बहुत सारे हम लोगों को डाउट्स था कि कैसा करेंगे। अब ऐसा हाल है कि अलॉन्ग विथ मुरकब अद्विया हमारे पास हमेशा मुफ्रद अद्विया उसमें मुसिल तो रहता ही है, तो इट इज़ अवेलेबल ईयर। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि सफरावी पेशेंट स्पेशली लेडीज़ विथ स्वेलिंग इवन विथ फर्स्ट टाइम मुसिल पेन मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई एक्सपीरियंस कुछ इसमें अगर ये कर देंगे तो हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो जनरली दूसरे मिजाज के लोगों में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बट सफरावी फीमेल में
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है, ये मेरा एक्सपीरियंस। इस मामले में मेरा मानना इतना ही है कि जो भी हम कह रहे हैं ये हम उस वक्त कह रहे हैं जब हम डिजीज इन फ्लेयर अप, हम उसको फ्लेयर अप में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो सबसाइड हो रहा है। जैसे अगर हम उसको मुंजिल मुसल थेरेपी दे रहे हैं या अगर हम उसको फसल कर रहे हैं, हम कोई और थेरेपी कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि उस स्टेज में इट इज़ बेटर आप दे रहे हैं, उस ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है ये जेनेटिकली बेस्ड है, तो डिजीज़ की प्रोग्रेशन को देखना ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेट करते रहना है। अदरवाइज आप सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, डिजीज़ अंडरलाइन जो है वो चल रही है और आफ्टर सम टाइम उसके वही सिम्टम्स आते हैं या वही डिफॉर्मेशंस हो जाती हैं जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन से होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस हम मास्क कर देते हैं उसके सिम्टम्स को ट्रीट करके और पेशेंट को लगता है मैं ठीक हूँ और वो चलता रहता है, बट आफ्टर सम टाइम वो डिजीज़ एक नई रूप में प्रोग्रेस होके वो डिफॉर्मिटी को ले आती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम फ्लेयर अप में उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि मॉडल में भी है, फ्लेयर अप में स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो उस फ्लेयर अप स्टेज को रोकने के लिए, फिर उनका एक कंसेप्ट है कि वो डीमार्ट्स वगैरह में ट्रीट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी अगर हम यूनानी में ले रहे हैं तो इस पेशेंट को जो कि एक जो डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये डिजीज़ प्रोलॉन्ग है, जब तक वो है जिंदा उसके साथ है डिजीज़। तो मेरा मानना है उस पेशेंट को हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और कंटिन्यूसली उसको स्टडी करना चाहिए, कहीं वो हम जो ट्रीटमेंट मास्क कर रहे हैं उसकी सिम्टम्स को कहीं डिजीज़ प्रोग्रेस तो नहीं कर रही, जो मैंने देखा है मोस्ट केसेस में। अदरवाइज ये है कि मंजिल दो और मुसिल दो और फसल दे दो, आप पेशेंट रिकवर कर जाता है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली काफ़ी हद तक पेन फील करता है, स्टिफनेस फील करता है, बट डिजीज़ प्रोग्रेशन को देखना ज़रूरी है कि अंडरलाइनिंग तो नहीं चल रही। हम जिस तरह से अब मॉडल में इसको कंटिन्यूली उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू मॉनिटर करते हैं, वो पार्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए इस पेशेंट को, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। बाकी जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया और आपकी समाअत में बार हुआ। ठीक है।